يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى في موضع آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قابل فخر علماء کرام، نوجوان، راہ حق کے ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے۔ اندگن درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر۔ محترم حضرات، میں نے مناسب سمجھا کہ تعلیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے تعلق سے آج کا عنوان رکھوں، کیونکہ اسکول کالج کھلنے کا یہ موسم ہے جہاں اسلام میں علم کی اہمیت، جو قرآن مجید کی آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی علم ہی کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ محترم حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ علم کے ذریعے سے آج لوگ زمین سے آسمان تک، چاند تک پہنچ چکے ہیں۔ چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں علم کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ہی بتایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سوالیہ نشان لگا کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ علم کے جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے علم ایک روشنی ہے، اور علم کے بغیر انسانی زندگی اندھیرا بھی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا هل يستوي الأعمى والبصير۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا هل يستوي الأعمى والبصير، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی روشنی عطا کیا ہے اور جو آنکھ کی روشنی سے محروم ہیں، جن کی بینائی چلے گئی ہے، نابینا ہیں، اندھے ہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک آنکھ رکھنے والا شخص اونچ نیچ کو، نشیب و فراز کو،
गड़े वो खड्डों को देखकर कदम रखता है और वो चलता है। उसके बरखिलाफ जिसकी बीनाई चली गई है, आदमी बीनाई से महरूम है, आंखों की रोशनी से महरूम है, कभी भी ना ऊंच नीच को देख सकता है, ना नशेब व फराज को देख सकता है, कभी भी कहीं भी किसी भी खड्डे में गिर सकता है। और खड्डे में गिरने के बाद उसको जितनी तकलीफ होती है तमाम अहबाब महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ हल यस्तविल अअमा वल बसीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ यही बताया है कि एक आंख रखने वाला इंसान दूसरी जिसको बीनाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दिया है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और उसके बाद इल्म अता किया। सबसे पहले नबी करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज, रोजे, ज़कात, ये तमाम चीजें नहीं बताया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले यही कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। कितनी बेहतरीन सूरत और कितना बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा खींचा। आज इल्म है तो आदमी कहाँ से कहाँ चला गया है, चाहे वो दुनियाई एतबार से हो, तरक्की कैसे कैसे कर रहा है इंसान, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर हो, आदमी इल्म ही की वजह से आज कामयाब इंसान बना हुआ है। उसके बिलखिलाफ अगर इंसान किसी भी इल्म से ना आशना है, कोई भी इल्म उसके अंदर नहीं है, तो जो है हल यस्तविल अअमा वल बसीर की तरह अंधेरे अंधेरे के अंदर ही रहता है और उसके जो है बीनाई जो रोशनी है, दुनियावी रोशनी भी छिन जाती है और उखरवी जिंदगी को भी वह नहीं समझ सकता है। आज इल्म है तो आदमी वजू को जानता है, वजू के पहले पढ़ने की चीज को जानता है, वजू के बाद की जो चीज को जानता है, गुस्ल को जानता है, हर अच्छी चीज को जानता है, नमाज के तौर तरीके जानता है। उसके बरखिलाफ अगर इल्म ही नहीं है, सूरह फातिहा नहीं है उसकी जिंदगी के अंदर, वजू करने के वक्त में जो है दरमियान में न जाने कैसी कैसी दुआएं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, गुस्ल खाने में जाते हैं तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, कम इल्मी की वजह से। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए, जहां अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान को इतना तो इल्म सीखना चाहिए, अच्छे बुरे, हराम हलाल, नमाज, रोजा, ज़कात, सदका, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोस, इन तमाम का जो इस इल्म आ जाए तो दुनियावी की जिंदगी के अंदर भी उसकी कामयाबी होती है और उखरवी जिंदगी के अंदर भी कामयाबी। आज इल्म ना होने की वजह से कितनी जिहालत इंसानों के अंदर पाई जाती है, मुसलमानों के अंदर पाई जाती है, इल्म की कमी की वजह से, एक दूसरे को के हुकूक को ना जानने की वजह से आज आदमी कितना परेशान होता है। ये तमाम चीजें इल्म ही की वजह से आते हैं। आपको और हमको मालूम होना चाहिए कि जब आदमी इंसान दुनिया से चला जाता है, उसके तमाम के तमाम आमाल वहां से मुनक़ते हो जाते हैं, रूह कब्ज़ हो जाती है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं। लेकिन ऐसे आमाल भी हैं जो क़यामत तक उसको सवाब पहुंचता रहता है। उसमें से एक नेक इल्म है। जो भी आदमी कुरान शरीफ को किसी को पढ़ाया, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया और आदमियों लोगों को नमाज का तौर तरीका बताया, लोगों को जीने का सलीका बताया, इस्लाम की सही तालीम और तरबियत की लोगों को बताया, तो वो हमेशा जो है पे दर पे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सवाब पहुंचते रहता है। इसी तरीके से नेक औलाद भी है जिनकी इल्म की वजह से सही तालीम हुई, उनकी तरबियत हुई, उनकी अच्छी देखभाल हुई, उनको हलाल और हराम दिखाया, नमाज बताया, बड़ों के साथ अदब सिखाया, छोटों के साथ शफकत सिखाया, पड़ोसियों के हुकूक को बताया, तिजारत और कारोबार के तौर तरीके सही दीन के मुताबिक सिखाया, धोखे से उसको बचाया, धोखाधड़ी से, झूठ से, गलतकारी से, बुरे कामों से, बुरे फेल से, बदकारी से, धोखा देने से इंसान अपने औलाद को बचाया और वह औलाद उसके मरने के बाद भी दुआ करती है और यकीनन नेक औलाद दुआ करती ही है, तो कितना फायदा। इसीलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने
جو قرآن مجید کی آیات میں نے شروع میں پڑھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جمع کیا، فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے بات کو رکھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے فرشتوں میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر جو ہے میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فوراً فرشتوں نے جواب دیا، اللہ رب العالمین ایسے خلیفہ کو، ایسی مخلوق کو تو کیوں بناتا ہے جو دنیا کے اندر جائیں گے؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ ایسی قوم کو تو کیوں پیدا کرتا ہے جو دنیا کے اندر جائیں گے، فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے، فتن و فساد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی پہلے پارے کی پہلے سورت کی سورہ بقرہ کی آیات ہے جس میں اللہ رب العالمین کو فرشتوں نے جواب دیا تھا، اے اللہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پھر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتوں نے کہا، اے اللہ رب العالمین تو ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا کے اندر جائیں گے، فساد برپا کریں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، فتن و فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا۔ اے اللہ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، انہوں نے فرشتوں نے یہی جواب دیا تھا، اے اللہ تیری تسبیح ہی بیان کرنا ہے تو ہم تسبیح کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، اللہ تیری تسبیح دن اور رات، صبح و شام، ایک سیکنڈ بھی ہم جو ہے اس میں ناغہ نہیں کریں گے، اے اللہ رب العالمین ہم تیری تسبیح بیان کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنانا تھا، انسان کی فضیلت کو پیش کرنا تھا فرشتوں کے سامنے، اللہ رب العالمین نے اور بھی آیاتوں کو اتارا اور پورا نقشہ کھینچا، اور اللہ رب العالمین وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین نے کہا، اے فرشتوں جس چیز کا علم مجھے ہے تم کو وہ علم نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم نہیں عطا کیا تھا جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزوں کو لایا، علم کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں، علم کی بڑی فضیلت ہے، علم والوں کی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت رکھا ہے، علم کی فضیلت رکھا ہے۔ میں تمام احباب سے ہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیجیے، کیونکہ آپ اور ہم جانتے بھی ہوں گے کہ بچوں کا کھانے پینے کا انتظام کرنا، کپڑے پہننے کا انتظام کرنا، ان کی ہر اچھی چیز کا خیال رکھنا، انتظام کرنا، ماں باپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمارا فرض، یہ ہمارا فرض چل گیا، کھانا پینے کا انتظام کر دینا، ایک ذریعہ بن کر کپڑے پہننے کا، ان کو رہنے سہنے کا انتظام کر دینا۔ نوجوان لوگ سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ ذرا اپنی ذہنیت سے ہٹیے، سوچئے، جانور جب تک بچہ چلنے پھرنے کا، گھاس کھانے کا اسے عادت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ماں دودھ پلاتی رہتی ہے، پرورش کرتی ہے، نہیں کرتی، وہ چھوڑ دیجیے۔ چھوٹی چھوٹی چڑیا چھوٹے سے انڈے سے نکلنے کے بعد بچوں کی ان کے اڑنے تک پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، گھر بنایا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھر بنا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے آرائش کا پورا انتظام ہے، ان کے اچھے برے کا پورا انتظام ہم کر رہے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں۔ آگے چلیے میں بتاتا ہوں، چھوٹی سی چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، پہلے جس طریقے سے انسان گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال رہنمائی کرتا ہے، الگ سی بات ہے، انسان ہے، انسان کو کرنا چاہیے۔ چڑیا، چھوٹی سی چڑیا کی مثال لیجئے، گھونسلہ بنانے کے بعد انڈے رکھ دیتے ہیں تو وہ سیکتی ہے، بچے نکلتے ہیں، جب تک ان کے پنکھ نہیں آ جاتے، اڑنا جب تک نہیں سیکھ لیتے، منہ سے لا کر کیڑے، پتنگے، گھاس پھوس
जो उनके जिंदगी के लिए जरिए माश होता है, वो लाकर उनको खिलाया जाता है, उनको पिलाया जाता है, उनके अपने मुंह से लाकर खिलाकर जो है उनकी परवरिश होती है। और परवरिश होने के बाद जब वो पंख मारना शुरू होते हैं, यहाँ तक के परिंदे उनको उड़ना तक जो है इधर से उधर सिखाकर बात छोड़ते हैं। तो इंसान भी जो है खिलाना पिलाना, उनकी परवरिश करना, उनका पहनाना, उनके घर का इंतजाम करना, ये बड़ी बात नहीं है, ये तो जानवर भी करता है, छोटा परिंदा भी करता है। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा फजीलत यह है कि बच्चे को जो है, बच्चे को आप तालीम याफ्ता बनाइए, ये इंसानियत होती है। उसके बरखिलाफ खाना खिला देना, वक्त पर माँ मार मार कर जो है खाना खिलाना, बाप जो है रात कर लाकर घरों में राशन डाल देना, ईद का मौका आए, कोई शादी का वक्त आए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहना देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जो है जिस तरीके से मैंने एक चिड़िया की मिसाल देकर बताया कि चिड़िया भी जो है अपने बच्चों की परवरिश के लिए घास फूस का घर बनाती है, घोंसला बनाती है और उनकी परवरिश करती है, देखभाल करती है। दूसरे जो जानवर, जो परिंदे उनको खाने के लिए आते हैं, उनको उनसे बचाती है और उड़ने तक जो है उनको सिखा देती है। लेकिन उसके अंदर तालीम कहाँ होती है? सही की तालीम, कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम, दुनियावी तालीम, हर तालीम से आप अपने बच्चों को आरास्ता बेरास्ता कीजिए, उस वक्त जो है इंसानियत आती है। सिर्फ खिलाने पिला देने से जो है इंसान की इंसानियत नहीं आती, बल्कि उनकी तरबियत, उनकी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दीजिए, उसी वक्त इंसान कामयाब होता है। और हम जो है जानवरों की तरह, हम परिंदों की तरह नहीं है, बल्कि हम लोगों को चाहिए कि बच्चों की तालीम की तरफ, परवरिश की तरफ, जैसा कि मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़कर बताया, हल यस्तविल अअमा वल बसीर, कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंखों की बीनाई दिया है, आंखों की रोशनी अता किया है, और जिसकी बीनाई नहीं है, कभी ये दो एक नहीं हो सकते। और इसी तरीके से एक इल्म वाला और एक बगैर इल्म के इंसान जो है, उनकी इंसानियत जो है एक नहीं होती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, जा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि एक इल्म का जानने वाला और एक इल्म नहीं जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो वो ऊंच नीच को देखकर, दुनियावी चीजों को, दुनिया के नशेब फराज को, दुनिया के खड्डों को, दुनिया की ऊंचाई को आदमी जिसको अल्लाह ने आंख दिया है देख सकता है, और बिना नाबिना आदमी जो है कभी भी कहीं भी गिर सकता है। इसी तरीके से इल्म अगर आप और हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि दुनिया की ऊंच नीच को देखेंगे, आखिरत की जिंदगी को संवारेंगे, क्योंकि उखरवी जिंदगी क़यामत तक रहने वाली जिंदगी होती है। दुनियावी जिंदगी आर्जी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दुनियावी जिंदगी से, दुनियावी तालीम और तरबियत से हट जाएं और कोई आकर जो है हमें अंग्रेजी में या हमारे रियासत की जबान में कोई सवाल कर दे तो हम गूंगे बहरे की तरह हो जाए, ऐसा भी नहीं है। हम हर चीज का इल्म हासिल करना चाहिए और अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता और बेरास्ता करना चाहिए, ना ही गूंगे बनाए, ना ही जो है नाबीना बनाए, बल्कि इल्म की अहमियत जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली ही आयत उतार कर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सिखा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली नबूवत वाली जो है आयत ही पढ़ने का हुक्म दिया है, तो मेरे दोस्तों यह पढ़ने के लिए कोई बड़ी उम्र, कोई छोटी उम्र, कोई बचपना या कोई जवानी नहीं होती है, बल्कि हम लोगों को जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कितनी बेहतरीन हदीस है। देखिए दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन आदमी वो है, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन आदमी वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है। उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। लोग समझते हैं कि 10-11 साल, 12 साल या 15 साल के अंदर बच्चा कुरान पढ़े और भूल भी जाए। जी हमारी हालात यह है, हमारे घरों के अतराफ अतनाफ की, कि बच्चे के ताल्लुक से ये ख्याल किया जाता है 10-11 साल का है, नूरानी कायदा पढ़ लिया या सरनाल कुरान पढ़ लिया, जल्द से जल्द कुरान ढंग से पढ़े या ना पढ़े, रख पलट कर खत्म कर दे, और उसके बाद ऐसा बंद करे कि उसकी जो है पूरी जिंदगी तक ना खोले, कुरान मजीद को पूरी जिंदगी तक ना खोले।
समझते हैं कि यही उम्र पढ़ने की है और उसके बाद कुरान को बंद कर देना, दुनियावी किताबों के ऊपर जो है उबूर हासिल करना। उबूर हासिल कीजिए, उससे कोई आपको मना नहीं करता है, उससे आपको कोई रोकता नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है दुनिया के अंदर जो कुरान मजीद को पढ़ता है और पढ़ाता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे दोस्तों, हम तमाम अहबाब कुरान मजीद की तालीम जो हमारे पास उलमाए कराम आते रहते हैं, हुफ़ाज़ कराम ने हाँ खिदमत अंजाम देते रहते हैं, वक्त बनाइए, तालीम हासिल कीजिए, कुरान मजीद को पढ़िए, उलमा से जो है उसका तर्जुमा के ताल्लुक से पूछिए, मालूमात हासिल कीजिए। आज जो हम लोग जो है जिस तरीके से मोबाइल को देखते हैं, पुराने पुराने रिकॉर्ड देखते हैं अपने कैमरे के अंदर, कैसे आया? हम और आप तकारीर के अंदर, वाज़ो नसीहत के अंदर, उलमाए कराम के बयानात के अंदर सुने हैं कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी पैदाइश से लेकर पूरे सियाहकारियाँ, बदकारियाँ, बदआमालियाँ, अच्छे काम पूरे के पूरे खोल कर हमारे सामने रख देगा। कैमरे हमारी जिंदगी के हमारे सामने होंगे। इसी को मद्देनजर रखकर जो है इल्म हासिल करने वाले सईदानों ने जो है यहाँ दुनिया के अंदर वो चीज़ों को बनाया, कुरान के अंदर तहकीक करके, कुरान के अंदर तहकीक करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को जान करके जो है ये सब तमाम चीजें उन्होंने ईजाद किया है। जब आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा पूरा खट्टा छट्टा जो है नामे अमाल हमारे सामने रखेगा, हम अपनी आंखों से हमारे करतूतों को देखेंगे, वहाँ हाथ को भी जबान होगी, वहाँ पैर को जबान होगी, वहाँ आंख को जबान होगी, वहाँ कान को जबान होगी। तो आज भी लोग जो है उसी हदीस को सामने रखकर तहकीक करते हुए फायदा उठाकर, इल्म का फायदा उठाकर जो है आज बहुत सारी चीजों को ईजाद किया है। आज जो हर आदमी के अंदर जरूरत की चीज बन गया है मोबाइल, बगैर इल्म के कोई बना नहीं सकता। घड़ी है या दूसरी दुनिया में जो चीजें हैं वो तमाम की तमाम चीजें इल्म ही की वजह से ईजाद हुई हैं, इल्म ही की वजह से जो है उसके बनाने वालों ने बनाया है। तो उससे ज्यादा मेरे दोस्तों आखिरत की जिंदगी संवारने के लिए हम लोगों को चाहिए कि कुरान मजीद का इल्म हासिल करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अहादीस को तलाश करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वजू का तरीका हो, बैतुल खला का तरीका हो, गुस्ल का तरीका हो, नमाज का तौर तरीका हो, कुर्बानी का तौर तरीका हो, जी हज का तौर तरीका हो, जो भी हो वो हमको जो है पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। उसी वक्त हम फायदा मंद हो सकते हैं। उसके सिवा हम लोग जो है हल यस्तविल अअमा वल बसीर की तरह हो जाएंगे, हम नाबिना शख्स की तरह हो जाएंगे। दुनियावी जिंदगी के अंदर भी जो है हम लोग आराम से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन उखरवी जिंदगी के अंदर जो है हमें कामयाबी नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि इल्म हासिल करें, इल्म से ही जो है आदमी इंसान बनता है। अच्छे और बुरे की, हलाल और हराम की, हर किस्म की जो है चीजें हमें मालूम होती है। इल्म के बगैर जो है इंसान नाबिना हो जाता है, अंधे की तरह हो जाता है। जी जिस तरीके से अंधे को कोई चीज मालूम नहीं होती, फर्क नहीं मालूम होती है, जैसा मैं बार बार अपने वाज में कहा कि कहीं भी जाकर गड्ढों में खड्डों में गिर सकता है। इसी तरीके से अगर कुरान और हदीस का इल्म हमें नहीं होगा तो हम लोग जो है कहीं भी जाकर जो है दीन समझकर, हर अरबी चीज दीन नहीं होती है। और लोग बोलते हैं कि अरबी में बोल रहा है, हर अरबी चीज दीन नहीं हो जाती। इसीलिए पहचान के लिए हम लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करना चाहिए। अपने बच्चों के हक में जो है खिलाना पिलाना ही नहीं, बल्कि इल्म, तालीम, तरबियत, ये तालीम और तरबियत सबसे बड़ी चीज होती है। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, सही माने में हम तमाम को इल्म दीन अता फरमा दे। अल्लाह इस्लाम का दीन अता फरमा दे, जिससे दुनिया की भी परख होती है, उखरवी जिंदगी की परख हमें होती है। अपने तमाम मसाइल का हल उसमें मिल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही माने में हमें दीनी इल्म अता फरमा दे, इल्म को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, हर किस्म के परेशानियों को, आफात को, आसमानी ज़मीनी बलाओं से, आफात से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व इय्याकुम बिल आयाति इन्नहु तआला जवादुन हलीम।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أولى وذل وتم وحم والسلام